Hello everybody, welcome back to the another video. I hope you people are doing well, but let me tell you from this video that the things are not going good for all the aspirant who belongs to engineering background. As I told you in my previous video that Indian Railway Management Service जो एक पोस्ट थी, जो एक कैडर था जो क्रिएट किया गया था अभी 8-10 दिन पहले, उसका जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू होने वाला है। तो लास्ट की वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की पोस्ट है उसका रिक्रूटमेंट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू होगा, बट ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि वेदर द रिक्रूटमेंट विल बी डन थ्रू द सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 एंड हाउ मैनी वैकेंसी विल बी देयर, व्हाट विल बी द प्रोसीजर एंड ऑल दैट। बट एक चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि आप लोग सभी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 में जो होने वाला है उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, बिकॉज दिस कुड बी द सिनेरियो दैट यूपीएससी अपलोडेड ए डॉक्यूमेंट विच स्टेट दैट we will be recruiting Indian Railway Management Service post through Civil Service Exam 2022। लेकिन वही हुआ है, यूपीएससी ने कल ही यानी कि 17 फरवरी को एक अडेंडम जारी किया है जो उनका एक एडवर्टीजमेंट था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का, उनको मॉडिफाई करते हुए या उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हुए कि हम कुछ नंबर जो वैकेंसी दी गई हैं उन वैकेंसियों को यानी कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की जो पोस्ट हैं उसको सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 से फिल करेंगे। तो ये बात जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना है अगर आप टारगेट कर रहे हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की पोस्ट को, तो वो चीज़ क्लियर कर दी है यूपीएससी ने कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो पोस्ट है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 मतलब इस साल में जो होने वाला है, जो बेसिकली 5 जून को होने वाला है, उसके थ्रू वैकेंसी को फिल किया जाएगा। उस अडेंडम में और भी कुछ बातें क्लियर की गई हैं कि एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी होंगी, कितनी पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व रहेंगी और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो सब बातें भी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। Before moving forward, let me tell you about the unlock feature provided by Unacademy. If you choose any of the Unacademy subscription, you will be having the opportunity to get 20% discount. The offer is valid till 19th of February. In order to get the discount, you can use my code as Jamrinder10. Unacademy brings up you with the daily scholarship test, which is basically free of cost. All you need to do is just download Unacademy app, try Unacademy for free, start the test, choose your branch, and step 4 you are right there to test yourself in a scholarship test. Unacademy announces new batches for GATE 2023 and GATE 2024. The batches are already started from 16th of February. You can find the link in the description in order to enroll the new batches. For the civil engineering, there is a mission DDR batch and the starting subject would be heat transfer. For CS and IIT, the resilience batch is there for GATE 2023. The starting subject would be operating system. For the mechanical engineering GATE 2024, the batch name is verb and the starting subject would be strength of material and general aptitude. For the electrical engineering, for the GATE 2023, the batch is evolve and the starting subject would be network theory and the engineering mathematics. For the EC, the starting subject would be network theory and the engineering mathematics. For the chemical engineering, for the GATE 2023, the batch's name is resilience and the starting subject would be fluid machining. Unacademy brings up another opportunity in order to get 100% discount. The GATE and the ESE Compact exam, which will be held on 20th of February at 11 am. You can find the link in the description. Now coming to the main content, as I told you that the UPSC released an addendum, as you can see on the screen also, कि UPSC ने जो addendum issue किया है उसमें उन्होंने बताया गया है कि टोटल 150 नंबर ऑफ द पोस्ट यानी कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस करके जो पोस्ट आई थी उसकी 150 वैकेंसी हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 के थ्रू फिल करेंगे। और जो टोटल 150 वैकेंसी हैं उसमें से 6 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व रहेंगी। सो जो अर्लियर नोटिफिकेशन आया था, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 का, उसमें ये बताया गया था कि टोटल 861 वैकेंसी यानी कि 861 वैकेंसी रहेंगी और 150 नंबर ऑफ द
द वैकेंसी हैज़ बीन एडेड एज IRMS पोस्ट। तो 150 वैकेंसी और इसके लिए ऐड हो जाती हैं, तो टोटल 1011 यानी कि 1011 वैकेंसी वहाँ पर टोटल सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 के थ्रू रिक्रूटमेंट के लिए कंसिडर की जाएंगी, जो टेंटेटिव है नेचर में। बट यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की जो पोस्ट है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 के थ्रू फिल की जानी है। पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि गजट इशू किया गया था और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि लेवल 10 पे यानी कि जूनियर टाइम स्केल पे देर वर टोटल 450 सैंक्शनड वैकेंसी। तो अगर 450 यानी कि 450 अगर वैकेंसी थी और उसमें से आप 50% भी अगर प्रमोशन के थ्रू रिक्रूट करते हो या प्रमोशन के थ्रू फिल करते हो, तो उसके बाद भी 225 यानी कि 225 वैकेंसी रहती हैं विच हैड टू बी फिल्ड थ्रू द सिविल सर्विस एग्जाम, राइट। बट अभी टोटल का जो उन्होंने एक डेटा दिया है वो 150 वैकेंसी ही सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू फिल होने वाली हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वैकेंसी में कटौती की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है फॉर ऑल द इंजीनियरिंग कम्युनिटी या ऑल द कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हु हैव स्टडीड द इंजीनियरिंग और द टेक्निकल सब्जेक्ट्स। बिकॉज क्या होता है कि इंडियन रेलवे का जो रिक्रूटमेंट था वो इंजीनियरिंग सर्विस 2019 में एक उम्मीद के साथ उसको हटा दिया गया था, यानी कि जो पहले कैंडिडेट थे जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस 2019 का फॉर्म फिल किया था और एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले ये पता लगता है कि जो इंडियन रेलवे का रिक्रूटमेंट है वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2019 के थ्रू नहीं होने वाला है। और उस टाइम पे एक होप दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस करके एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जिससे कि इन सभी रेलवे की पोस्ट को फिल किया जाएगा और उसका जो एक फ्रेमवर्क है, उसका जो भी ढांचा है वो कुछ ही महीने में तैयार किया जाएगा। बट उसको 3 साल लग गए, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस 2019 से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, 20 से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, 21 से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। अब 22 एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है उसके बाद से तो रिक्रूटमेंट होना ही नहीं है, क्योंकि वो सब शिफ्ट हो गया अभी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के ऊपर। कितना बड़ा निगेटिव एस्पेक्ट है फॉर ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, क्योंकि अभी आप 3 साल से उस होप में, सभी लोग उस होप में तैयारी कर रहे थे कि हाँ एक दिन या एक साल आने वाले में इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू IRMS या रेलवे की जो वैकेंसी है उसका रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, अब रेलवे पे मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि जब रेलवे की वैकेंसी आती थी यानी कि 2018 में, 2017 में, उस टाइम पे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल के लिए ही टोटल वैकेंसी जो इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू रिक्रूटमेंट होता था वो कम से कम 110, 100 इसी के आसपास रहती थी, यानी कि 100, 110 के आसपास टोटल वैकेंसी रहती थी। बट जब से रेलवे निकला है या जब से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री निकला है, मेनली रेलवे निकला है, उसके बाद से जो वैकेंसी हो गई हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। अभी आप देखेंगे यानी कि 2020 में, 21 में या 22 में टोटल वैकेंसी जो इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है मैकेनिकल में वो कम से कम 40-50 यानी कि लेस देन 50 ही होती हैं। तो एक कितना बड़ा सेटबैक आया है रेलवे की तरफ से और उसका अचानक से आप सिविल सर्विस के थ्रू उसका रिक्रूटमेंट कर देते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बैड न्यूज है और बहुत ही डिमोरलाइजिंग करता है सभी कैंडिडेट को जो एक रेलवे में या जो एक इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करने में लगे थे। पहले तो आप इंजीनियरिंग सर्विस 2019 के कुछ दिन पहले बताते हो कि इंडियन रेलवे की पोस्ट का रिक्रूटमेंट इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू नहीं होगा और एक सेपरेट एग्ज़ाम आएगा। फिर 3 साल तक कोई बात नहीं होती है, किसी चीज़ का कोई अपडेट नहीं आता है। फिर जब सिविल सर्विस एग्ज़ाम फिल करने के 1 हफ्ते पहले आप उसकी पोस्ट का या पोस्ट को गजट में इशू करते हो, उसके बाद एक अडेंडम आता है कि जब फॉर्म फिलिंग वैकेंसी के 2 दिन पहले एक अडेंडम आता है कि आपको जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की पोस्ट है उसका रिक्रूटमेंट सिविल सर्विस एग्ज़ाम से होगा, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए या जो भी कैंडिडेट है वो उस 2-3 दिन के पीरियड में फुल फॉर्म कर दीजिए जो टारगेट कर रहे थे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को। तो ये गवर्नमेंट के कंसंट्रेशन को दिखाता है कि वो बेसिकली इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी कैंडिडेट हैं जो इंजीनियर है बेसिकली जो टारगेट कर रहे थे टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ, उनका अभी कुछ नहीं होने वाला है या उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि हम रातों रात कुछ भी चेंज कर देंगे। कल तक इंजीनियरिंग सर्विस का झांसा देते थे, आज हम लोग उसको सिविल सर्विस के थ्रू रिक्रूट कर देंगे, वो भी इतने कम शॉर्ट टाइम के पीरियड पे, यानी कि 1 वीक के अंदर आपने पोस्ट भी फ्रेम कर दिया, अडेंडम भी आ गया और उस अडेंडम के थ्रू आप उसका रिक्रूटमेंट की पोस्ट भी क्लियर हो गई और उसका रिक्रूटमेंट भी आपने फिक्स कर दिया कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 के थ्रू होना है।
उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इंजीनियर्स के ऊपर या जो भी एस्पायरेंट है जो तैयारी कर रहे थे, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप तुरंत के तुरंत इंजीनियरिंग सर्विस से सिविल सर्विस में स्विच करना कितना मुश्किल है। अभी बेसिकली जो आईआरएमएस का पोस्ट आया है वो इंजीनियर्स के लिए ना हो के वो बेसिकली सिविल सर्विस की एक्स्ट्रा पोस्ट में ऐड हुआ है। यानी कि जो पहले 861 पोस्ट थी उसी में 150 पोस्ट और ऐड हो गई हैं। तो वो बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है इंजीनियर्स के लिए, या जो भी इंजीनियरिंग सर्विस को टारगेट कर रहे थे या जो भी गेट के ईएससी की तैयारी कर रहे थे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उन 150 पोस्ट से। बिकॉज आपको अगर उन 150 पोस्ट के अगेंस्ट में आपको कॉम्पीट करना है तो उससे पहले आपको सिविल सर्विस एग्जाम का प्री निकालना पड़ेगा, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिसकी तैयारी आप अभी तक नहीं कर रहे थे। ऑफ कोर्स नहीं कर रहे थे क्योंकि आप गेट और ईएससी को टारगेट कर रहे थे। उसके 2 दिन या 1 वीक के अंदर आप एक उसका नया मॉडिफिकेशन करते हो और आप उन्हीं कैंडिडेट को बोलते हो कि नहीं, अभी आपको सिविल सर्विस एग्जाम को टारगेट करना है। यानी कि जो जून में एग्जाम होने वाला है आपको 4 महीने पहले बताया जाता है कि 2 दिन पहले आप उसका फॉर्म फिल करो और 4 महीने पहले आप उसके प्री को टैकल करो। और सबको पता है कि सिविल सर्विस एग्जाम का प्री निकालना या मेंस के लिए टैकल करना वो इतना इजी नहीं है। वो टाइम चाहिए, माइंड सेट चाहिए और वो प्रिपरेशन चाहिए उस चीज़ के लिए। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे चीज़ों को अदल से बदल कर देना वो बेसिकली इंजीनियर्स के हाथ से वैकेंसी को छीनना ही है, या उनको एक ऑप्शन नहीं देना। वो अल्टीमेटली वही बात हो गई कि हम आपको ऑप्शन नहीं देना चाहते, या आप उस चीज़ के लिए अगर ट्राई कर सकते हैं तो आप सिविल सर्विस एग्जाम का प्री निकालिए, मेंस निकालिए, उसके बाद आप उसको लीजिए। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अभी उस चीज़ के लिए सभी लोग फाइट करेंगे, राइट। या जो भी अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, जो लास्ट में जिनका 1000 या 800 900 रैंक आता था उनको कोई भी पोस्ट नहीं मिलता था। अब उन कैंडिडेट को जो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, बीएससी से, एमएससी से, जो भी बैकग्राउंड से हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, अब उनको वो पोस्ट मिलेगा, ना कि इंजीनियर्स को। ठीक है, इंजीनियर्स को जो पोस्ट मिलना था उनको प्री निकालना है, मेंस निकालना है, ठीक है, उसके बाद मिलेगा। वो इतना इजी नहीं है क्योंकि आप तैयारी नहीं कर रहे हो उस चीज़ की। बट जो लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो वो जो बाउंड्री पे आने वाले थे, यानी कि जो 800 900 रैंक पे आने वाले थे, उनको अब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की पोस्ट मिलेंगी। और हो सकता है मैक्सिमम नॉन टेक्निकल लोग इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की पोस्ट में जाएंगे और इंजीनियर्स उसमें नहीं जा पाएंगे। वो स्ट्रेट नो है या बहुत ही डिफ़िकल्ट है उनके लिए, क्योंकि आप लोग पहले से सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हो। आप टारगेट कर रहे हो आईआरएमएस को, थ्रू आईआरएमएस एग्जाम या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। इंजीनियर्स बेसिकली आईआरएमएस या इंडियन रेलवे मैनेजमेंट पोस्ट की सर्विस को भूल जाइए, क्योंकि अगर आपको सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू ही देना है तो आप आईएएस क्यों नहीं चूज करेंगे या आईपीएस क्यों नहीं चूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही निगेटिव एस्पेक्ट है, बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हुआ है। और एक अचानक से 1 वीक के अंदर इतना सब कुछ डिस्कशन होना और इतना सब कुछ डिसीजन होना, फाइनल कर देना उसको सिविल सर्विस के थ्रू तुरंत, वो आई थिंक एक अच्छा स्टेप नहीं है। ऑफ कोर्स इंजीनियर्स के लिए तो बहुत ही गलत बात है, बिकॉज इसके अलावा भी हमने देखा है जो इंजीनियर बैकग्राउंड के लोग हैं या जो भी बीटेक करके आते हैं या जो भी पॉलिटेक्निक के लोग हैं, उनके पास जो कोड एरिया है, उनके जो कोड टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड एग्जाम गिने चुने ही हैं। आप गेट की बात कर लें, गेट में आपने स्टाइपेंड जो पहले मिलता था उसके रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। उसकी जो फीस होती थी, एमटेक की जो फीस है फ्रॉम टॉप आईआईटी और एनआईटी, उससे भी आपकी फ़ीस हाई कर दी गई है। पिछली टाइम भी न्यूज आई थी और वो एक्चुअली में हो भी चुका है कि अभी जो फीस है, जो पहले 20-30 हज़ार होती थी पर सेमेस्टर, अभी उसको बढ़ा के 1.5 लाख 1 लाख कर दिया गया है। और आप अगर एमटेक भी ड्रॉप करते थे उसके लिए भी स्टाइपेंड के रूल हैं बहुत टाइट कर दिए गए हैं। तो वहाँ भी एक चांस नहीं है, यानी कि आप एमटेक के लिए भी बिना सोचे समझे नहीं जा सकते थे। ठीक है, और आज भी लोग, बहुत सारे लोग इवन अच्छा रैंक स्कोर करने के बाद भी एमटेक नहीं करना चाहते फ्रॉम टॉप आईआईटी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये सब प्रॉब्लम है। उसमें फीस इंक्रीज कर दी गई है, स्टाइपेंड में भी बहुत ज़्यादा टाइट रूल कर दिए गए हैं, आपका स्टाइपेंड जब्त हो जाएगा। तो इस सब को लेके एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, आप गेट से पीएसयू की बात करते हो। अब पीएसयू में भी पहले टाइम पे 2016 में 17 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती थी, बहुत ज़्यादा, कम से कम 800 900 वैकेंसी आती थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अभी आप देखें बहुत गिनी चुनी पीएसयू हैं जो गेट के थ्रू रिक्रूट कर रही हैं, और उसकी भी सर्टेनिटी नहीं है कि किसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, किसका नहीं आता है, या किस कौन रिक्रूट करेगा, कौन अगले साल नहीं रिक्रूट करेगा, उसके लिए भी बहुत अनसर्टेनिटी है। आपका अगर 200 300 रैंक आता है उसके बाद भी आप एक
वरी में रहते हैं कि कब रिक्रूटमेंट आएगा, कब कौन नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो वहाँ भी कोई स्कोप नहीं है। यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू अगर हम आईआरएमएस का वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे या आईआरएमएस का एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ भी कोई स्कोप नहीं है। गेट के थ्रू एमटेक करने में स्कोप नहीं है, गेट के थ्रू पीएसयू में भी इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो अभी बचा क्या, आप इंजीनियरिंग सर्विस की बात कर लें। पहले कितनी वैकेंसी आती थी, जब रेलवे रहता था तो 100 वैकेंसी आती थी, अभी 40 वैकेंसी आ रही हैं। तो उस 40 वैकेंसी में भी आप जनरल का देखेंगे 25 वैकेंसी है, उसको ऑल इंडिया लेवल पे आप उसको 25 वैकेंसी को कैसे टारगेट करेंगे सारे कैंडिडेट। या आप जब जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो इतने सारे इंजीनियर्स में आप 25 वैकेंसी देंगे तो वो कैसे काम चलेगा। तो ये सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए नहीं है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए और भी बुरी बात है जो आने वाले हैं। यानी कि केस इज़ बीइंग गेटिंग बस बाय बस, डे बाय डे। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। जो भी अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, चीज़ें उतनी आसान नहीं मिलने वाली हैं। जब तक आप यहाँ आएंगे उस चीज़ का और भी बुरा हाल हो चुका होगा। ठीक है, अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास गेट में 2-4 वैकेंसी हैं या इंजीनियरिंग सर्विस में जो वैकेंसी हैं, बट जो सिनेरियो अभी चल रहा है उसके हिसाब से अगले 2-3 साल में जो पीएससी रिक्रूट कर रही हैं हो सकता है कि वो भी रिक्रूट ना करें। ठीक है, क्योंकि दिन पर दिन जो भी प्राइवेटाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो इंजीनियर्स जो आने वाले हैं उनके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे कोई भी एग्ज़ाम निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी आप देखेंगे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम आपको देना है तो टेक्निकल सब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। आपको आईआरएमएस टारगेट करना है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। आपका कोई बीएससी या जो और भी बैकग्राउंड के जो भी कैंडिडेट हैं जिसने भी ग्रेजुएशन किया है वो कल को टारगेट करके उसको आईआरएमएस के पोस्ट पर चला जाएगा और आप इंजीनियरिंग होते साथे उसका कोई भी बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। आपको क्या ही करना है उसका, जब सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट हो ही रहा है तो। ठीक है, तो बहुत गिने चुने सब्जेक्ट्स, गिने चुने एक एग्ज़ाम बचे हैं जिनका रिक्रूटमेंट जो होता है वो कोर सब्जेक्ट के बेसिस पे होता था, बट उनके थ्रू अभी वैकेंसी नहीं है। वो 2 ही एग्ज़ाम है, गेट और इंजीनियरिंग सर्विस, उनके थ्रू भी अभी वैकेंसी नहीं है। और जो आईआरएमएस इंडियन रेलवे की जो पोस्ट होती थी, ज़्यादा पोस्ट होती थी, बट वो सिविल सर्विस के थ्रू अभी चली गई हैं, क्लियर कट चली गई हैं। तो अभी कंडीशन बहुत बुरी हो गई है, लोगों को आना पड़ेगा और थोड़ा कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। चाहे गवर्नमेंट गलत कर रही है या लोगों के साथ गलत हो रहा है, बट जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अभी उस चीज़ में सब लोगों को आपस में आके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बट तब तक के लिए अपना माइंडसेट ख़राब मत कीजिए। अभी इंजीनियरिंग सर्विस का प्री एग्ज़ाम है कुछ ही दिनों में, उसको टारगेट कीजिए और सिविल सर्विस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दीजिए। और जो भी वैकेंसी आ रही हैं अपार्ट फ्रॉम द इंजीनियरिंग सर्विस और गेट और द सीएससी, उन पर ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए उनमें सेलेक्ट होने की। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।